Guys, good morning. So again, today we'll be starting with such a new chapter, that's enhancement of food production. Chapter 11. It's a new chapter. Today is 22nd of April. Okay. So by the name we can understand that there is certain enhancement, that is there is increase in the rate of food production. Okay. But the question arises, how there is an increase? Okay. That means there needs to be certain factors, certain methods, some other thing you need for improving or increasing your food quality, quantity, and your production. Okay. So, what is food first? Coming to that, food is the basic need. What do it do? It provides you energy. Okay, what do it do? It provides you energy. Okay, what do food does for our body? It keeps us alive, it makes us strong, as well as it makes us healthy. Okay, then if we are defining food, so food is nothing but any solid or liquid which when swallowed and digested and assimilated in our body keeps us well. Swallowed मतलब हमने कुछ खाया, डाइजेस्ट मतलब हमारी बॉडी ने उसको ब्रेक डाउन किया, एसिमिलेट मतलब जब वो हमारे ब्लड में समा गया, दैट इज ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया. ओके, एंड इसकी वजह से हम लोग को वो ठीक रखता है, राइट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फूड? इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. Why? Because we know many of the food contain contents are including glucose or various sugars, right? So what is glucose? It's a compound which has a chemical formula C6H12O6, right? So it's an organic compound which is energy rich, it's non-poisonous, edible, and nourishing substance, right? Because it gives you nourishment. I hope this part is very much clear to all. Okay, then what do green plants do? Green plants do photosynthesis, and thus they synthesize their own food. They synthesize their own food via this process of photosynthesis. Okay, but if we are speaking about the other animals or human beings, they are directly or indirectly dependent on plants. Do we animals say that we have made spinach? It's green plants which have made nourishment for their own cells, and they have stored it. Okay, that spinach does it's having high iron content. Okay, so that is what I'm trying to convey, that it's not we who have made the food, it's the plant who have made the food. We just modify the food and then we have it, but the main source of food is plants. Okay, because plants are those which are capable of photosynthesizing. What is photosynthesizing? Photo, लाइट, ब्रेक द वर्ड इनटू टू. फोटो, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना. किसका सिंथेसिस करना? फूड का सिंथेसिस करना. हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं. एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं करते. ओके, सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, if there is a goat and cow, they'll be directly eating the grass or vegetables from the lands. Okay, but we humans cook the food, we make it tastes better and then we take it, right? That means we are indirect consumers, whereas the animals are direct consumers, right? So we animals as well as human beings are completely dependent on plants. Okay, then there is a line written in your book that is, famine is responsible for the dearth of food besides increasing rapid population. Now what is this famine? Famine is nothing but scarcity of food. It is responsible for lack of food because there is increase in the population day by day. So as there is increase in the population day by day, there is increased demand of food, right? As there is increased demand of food, the farmers need certain techniques for increasing the production of seeds or fruits or flour, basically feed additives. Okay, so that is what I'm trying to convey. Why there is a need? Because the population is increasing day by day, so we need to fulfill the needs of today's populations. I hope this part is very much clear. Now, to meet the increasing demand, we need to improve methods which are already existing. We need to improve the methods for production of food on the larger scale. That is, we need to improve quality as well as quantity. How can we maintain quality and quantity, or how can we improve? By improving our own techniques, right? For example,
we need certain updates in our phone, right? If we'll not update, we'll have an older device which will have working in an older format, right? But if we improve, or if we update the applications, we are actually able to improve, see the improved features, right? So that is what we need to do in case of agriculture as well. We need to improve the varieties which are already existing. Sorry, the techniques which are already existing. Okay, varieties we also improve, we'll come to that part. Okay, so for improving, we need plant breeding as well as animal breeding, so as to increase fruit production. Why we are eating plants? Okay, we are also eating animals like hens. Okay, we are also eating eggs of hens, right? That means plant breeding as well as animal breeding can collectively help us to cope up with the problem of food supply. That is, the food which we are lacking, the quantity is very less because of the increased population. So we need to improve certain techniques, certain methods need to be renewed. So this plant breeding and animal breeding are two important perspectives which help in increasing the food production. I hope this part is very much clear. Okay, coming to plant breeding, what is actually plant breeding? What is breeding of plant? We'll come to this perspective. It's a method of breeding the plant so as to increase their importance. Now, what is increasing their importance? हम लोग कुछ इस तरह से प्लांट्स को ब्रीड करवाते हैं जिससे हमें जो अपकमिंग वैरायटी मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिलेगी. इसका मतलब क्या है? The improvement or purposeful manipulation. Manipulation means certain changes, certain modifications. Okay. In the heredity of plants or crops. Heredity मतलब जैसे जीन्स प्लांट जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर रहा था वैसे ही उसने अपने क्रॉप्स में डाले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को चेंजेस करने हैं. क्यों चेंजेस करने हैं? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन आते आते जो क्रॉप की क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो गई है, डिग्रेड हो गई है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अब इम्प्रूवमेंट हो. इस इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए हम लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. किसमें चेंजेस करने पड़ेंगे? उनके जेनेटिक मटेरियल में, दैट इज उनकी हेरिडिटी में. ठीक है, और हमें बनाने हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर वैरायटीज. व्हाट इज न्यू सुपीरियर वैरायटीज? न्यू सुपीरियर वैरायटीज का मतलब है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी, अब हम कुछ न्यू वैरायटीज बनाना चाह रहे हैं. किसमें से? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्रॉप प्लांट्स. अब कोई है क्या कि ऐसे बोले डायरेक्टली हमने 2 जीन्स उठाए और हमने एक नया प्लांट बनाया? ऐसा बनाना अलाउड नहीं है, दिस इज बैंड. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? 2 अच्छे प्लांट्स को लेकर के क्रॉस करवा सकते हैं और आप सुपीरियर वैरायटीज़ बना सकते हैं, न्यू सुपीरियर वैरायटीज़ बना सकते हैं. किससे? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उनसे. ठीक है, आप ऐसे कोई भी वैरायटीज़ नहीं बना सकते जो एग्जिस्टिंग नहीं थी. ठीक है, एग्जिस्टिंग नहीं थी मीन्स अगर पेरेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनमें से न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन आप सडनली ऑल टुगेदर न्यू प्लांट्स नहीं बना सकते जिनका जेनेटिक नॉलेज नहीं है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं. ओके, आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर. ओके, कमिंग टू दिस नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? इट्स अ आर्ट एज वेल एज साइंस. ओके, यानी ये आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है. क्यों? बिकॉज वी चेंज एंड इम्प्रूव द हेरिडिटी ऑफ द प्लांट. We change heredity, this means there is involvement of science. But we change and improve it means we use certain techniques in a correct manner. That means we are using our art, our knowledge. Okay, we are actually trying कि proper way से plant की breeding हो, है ना? इसीलिए we are using art as well as science, both knowledge for improving the heredity of plant. Why do we need to improve? So as to fulfill the increasing demand of food which is not being fulfilled. Okay, I hope this part is clear. Okay, then plant breeding can be carried out using the principle of genetics, taxonomy, physiology, pathology, agriculture, RDNA. Genetics we know. Okay, taxonomy is a method of naming the plants depending upon their features, characteristics. Physiology उनका physical structure पढ़ के उनके sections लेकर के हम determine कर सकते हैं. Pathology on the again on the testing level. Agriculture we all know. RDNA technology we'll be knowing soon. Okay, we'll study RDNA technology. It's nothing but combination of DNAs. Okay, recombinant DNA technology. Okay,
Why do we do combination? So as to get a desired gene. This part will be discussed later on. It's not the topic of discussion. Okay. Then plant breeding is a method of altering genetic pattern. Altering means what? Changing the genetic pattern. मतलब already जो existing था उसमें हमने चेंज किया. क्यों किया? So as to increase their value and utility for human welfare. मतलब ह्यूमन बीइंग्स के लिए जितना वो ज़रूरी है उसकी वजह से हम लोगों को उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, यूटिलिटी लेवल ये सब इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके हम क्यों कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ओके सो एज टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, the quality, the tolerance to environmental stresses. Now what is this tolerance to environmental stresses? हम लोगों को ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस हो एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ. एक्सेसिव धूप हो तो भी प्लांट सर्वाइव कर जाए, एक्सेसिव पानी की कमी हो, स्कैसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ नरिशमेंट, मिनरल्स, आयंस, then do plants should survive. Okay, that is all. These are scarcity to the environmental conditions. For example, there is drought. Okay, so all these conditions are nothing but the conditions which are environmental stresses. Okay, so the plants should have certain, we should say that certain resistance or tolerance to all the environmental stresses. I hope this part is very much clear. Okay, then the plants should be having resistance against pest. Okay, that is pest free. I have made the word. Okay, the plants should be resistant enough. Okay, then what is green revolution? We have studied this, okay, in our I guess 8th, 9th, 10th standard. Green revolution was a result of scientific breakthrough and developmental activities that fought hunger by increasing food production. Now what is this? ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ क्या? साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था. मतलब काफ़ी सारे लोगों के साइंटिफिक थॉट्स थे जिन लोगों ने अपने अपने थॉट्स रखे कि हम ऐसा ऐसा मेथड्स यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. डेवलपिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया. क्यों किया गया? क्योंकि हम लोगों को हंगर से लड़ना था. दैट इज फाइट अगेंस्ट द हंगर. वी फॉट अगेंस्ट द हंगर इन द अर्लियर टाइम्स. ओके, by increasing the food production, because earlier people were more poor as compared to recent scenario. People were more poor, people were lacking all the facilities, amenities, but later on people improved the quality of life. Okay, so then coming to the next part, seeds with the superior quality as well as use of chemical, pesticides, fertilizers, multiple cropping system, machinery, these all were included in the green revolution. Okay, हम लोग को अच्छी क्वालिटी की सीड्स मिलती थी, सुपीरियर वैरायटी की. देन केमिकल्स का यूज़ करा हमने, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर्स. बट यू नो यूजिंग ऑफ एक्सेस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स also decreases the value of the plant or the vegetables which we are taking. Okay, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स वी शुड हैव मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. एक साथ हम एक ही खेत में 3 से 4 क्रॉप्स को उगा पाए. दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. एक जगह पे चावल उगा लिए, एक जगह पे गेहूं उगा लिया. दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. देन मशीनरी, इरीगेशन, दीज ऑल आर नथिंग बट द पार्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन विच हैव एक्चुअली हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन. ओके, then we have also produced disease resistant varieties of wheat, rice and maize. Okay, then the plant breeding is about 10,000 years ago. This is all introduction. Okay, present day crop plants are nothing but the result of present day crop plants में जो अभी की जनरेशन में अभी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने डोमेस्टिकेट किया. डोमेस्टिकेट घर के घर में ही उगाना शुरू किया, धीरे धीरे खेत बनाया. दैट इज डोमेस्टिकेशन. एंड एक्लेमेटाइजेशन. व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन? एक्लेमेटाइजेशन इज नथिंग बट adjustment with the environmental conditions. Okay, then we'll come to the new part, that's hybridization and its technique. Okay, coming to the part that is hybridization and its technique, it's a chief method. Now why are we studying hybridization? What is hybridization? It is nothing but plant breeding. Okay, so what do we do in hybridization? We are involved in the crop improvement programs. Okay, we are involved in the crop improvement programs and we use this method only effective means of combining together the desirable characters of 2 or more varieties. This means we are using this technique so as to improve the characteristics of already existing 2 or more varieties of the plant. We are interested in taking 2 characters of the plant. For example, as a plant A, okay, I have no space over here. Assume there's a plant B. Okay, so plant A has 5 desirable features. Okay,
whereas plant B has 3 desirable features. Okay, so these desirable features are selected and then these plants are crossed, and this is called as hybridization or plant breeding. It's artificial method of crossing two different varieties or two plants so as to get a desired hybrid. Now why desired hybrid? हम लोग जब इन दो desirable plants का cross करेंगे तो selected parents का cross करेंगे तो हम लोगों को जो generation मिलेगी वो एक hybrid होगी. हम लोग क्यों interested हैं hybrid में? So as to get a good vigor plant. Good vigor means ऐसा plant जिसका growth अच्छा हो, जिसके seed size अच्छे हो, जिसमें सारे अच्छे अच्छे qualities हो. That means an ideal plant. Okay, that means a plant which should have many good qualities. Okay, for example, the 8 features are combining, that is 5 and 3. The plant should at least transmit 4 or 5 features. Okay, so it's not that way easy to combine the genetic features. Okay, this is what is the desirable character. Desirable means जिसमें हम interested हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जिस पर्टिकुलर जीन में हम इंटरेस्टेड हैं. अब ये क्या हो सकते हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स? ये ऐसे हो सकता है कि गुड क्रॉप साइज, ओके, देन टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस. ठीक है, गर्मी है तो प्लांट सर्वाइव कर सके, पानी की कमी है तो प्लांट सर्वाइव कर सके. दीज आर नथिंग बट द टॉलरेंस स्ट्रेसेस, ओके, अगेंस्ट द एनवायरमेंट. तो ये डिजायरेबल फीचर्स हैं. देन डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिजीज अफेक्ट कर रहा है तो एंटीबायोटिक से किल हो जाए. ये सारे फीचर्स जो है डिजायरेबल फीचर्स में इंक्लूड होता है. डिजायरेबल मतलब जिनका हम डिजायर रखते हैं, जिनकी फीचर्स की इच्छा हम रखते हैं कि ये प्लांट्स में आए. ओके, तो डिजायरेबल फीचर्स ऑफ 2 or more varieties. Via this that means using this method, new genetic combos, that is new genetic combination plants can be prepared from the already existing ones. Already existing ones means जो already उनके parents exist कर रहे थे उनका क्रॉस करवाया, हम लोगों को न्यू जनरेशन मिला, न्यू वैरायटी का प्लांट मिला. अब ये ऐसा क्यों मिला? Because we crossed 2 different plants which were having desired gene of interest or desired features. What is desired feature or desired gene? जिसमें हम basically interested हैं. Okay, then it exploits and utilizes hybrid vigor. अभी क्या करता है, कुछ कुछ प्लांट्स की खुद की क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं जब हम ये सारे क्रॉसेस करते हैं. दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्लांट्स का, लेकिन कुछ हद तक यूटिलाइजेशन भी हो रहा है. राइट, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अभी तक एग्जिस्टिंग ही नहीं थी. हमने उनके पेरेंट्स को यूज करके न्यू वैरायटीज बनाई है. दैट इज हमने क्रॉसेस की है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से, अपकमिंग जनरेशन बनाया, न्यू जनरेशन बनाया. क्यों बनाया? Because these generation or these plants which are obtained are the high yield, high quality, high quantity. Okay, then hybridization दो तरह से, काफ़ी सारी तरह से हो सकता है. इंट्रावैराइटल मीन्स सेम वैरायटी के बीच में, इंटरवैराइटल मीन्स 2 डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में. इंटर स्पेसिफिक मीन्स 2 स्पेसिफिक स्पीसीज हैं जिनके जीनस भी सेम है. और इंटर जेनेरिक मीन्स 2 जेनरा के बीच में. ठीक है, 2 जेनस के बीच में और यहाँ पर 2 स्पीशीज के बीच में. ठीक है, और ये 2 क्रॉसेस जो हैं नेचर में होते रहते हैं काफ़ी बार. सेल्डम अकर इन नेचर. ओके, काफ़ी बार होते रहते हैं नेचर में, नेचुरल कंडीशंस में. अब पेरेंटल क्रॉसेस जो हैं, दैट इज द पेरेंटल प्लांट्स आर डिस्टेंटली रिलेटेड. सच क्रॉसेस आर वाइड क्रॉसेस. क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए हैं. ये क्रॉसेस नेचुरली नहीं हो रहे, हम लोग इनका क्रॉस करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग बोल रहे हैं. इसका मतलब है प्लांट्स डू नॉट ब्रीड विथ दीज पार्टनर्स अंडर नेचुरल कंडीशंस एंड thus we are selectively making them to breed with each other by giving certain conditions. Okay, so these plants are from huge distance away from each other, that is they are distantly related and thus they are also called as wide distant crosses. काफ़ी दूर दूर हैं ये crosses. Okay, coming to the main steps, it's a very important perspective. The first part is collection of variabilities. Variabilities means हम लोगों को वैरायटी कलेक्टेड होनी चाहिए हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कई सारे प्लांट्स जो हैं जिनके वाइल्ड स्पीशीज हैं और रिलेटिव्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज. रिलेटिव मीन्स जो प्लांट्स ऑलरेडी कल्टिवेशन में हैं उनके रिलेटिव्स, उनकी फैमिली से बिलोंग करने वाले कुछ प्लांट्स जिनके पास कुछ अच्छे फीचर्स हैं, हम सबसे पहले इनको कलेक्ट करते हैं. क्योंकि इनमें क्या है, डिजायर्ड ट्रायड्स हैं. डिजायर्ड हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड फीचर्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं. ठीक है, सो इट शुड बी कलेक्टेड
एंड प्रिजर्व्ड, मतलब हमें इनको कलेक्ट करना है ऐसी स्पीशीज को और इनको प्रिजर्व करना है। बेसिकली हम प्रिजर्व क्या करते हैं, हम इनका जर्म प्लाज्म प्रिजर्व करते हैं। जर्म प्लाज्म क्या है, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करते हैं जब, उसको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। अब जर्म प्लाज्म को हम दो तरह से कलेक्ट करके प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू में हम क्या करेंगे ना, फॉरेस्ट और नेचुरल रिजर्व्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिजर्वेशन सेंटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे जूज होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जो बेसिकली रिजर्व्ड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉलोज होते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स। ओके, वेयर इज एक्सी2 में बॉटनिकल गार्डन्स आएंगे और सीड बैंक्स आएंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। Coming to page 4, that's step 2. In the first step, we collected certain germplasm, that is variability. Second step is evaluation and selection of parents. मतलब हमने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, तो हमने कुछ ना कुछ क्वालिटीज देखी होंगी प्लांट की, कुछ ना कुछ ट्रायड्स देखे होंगे जिसकी वजह से हमने प्लांट को सिलेक्ट किया है, राइट? So this collected germplasm is screened. What is screen? Screen is to check. Okay, screen is to check to identify the parents with the desirable characters. मतलब जो पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट किया उनके जर्म प्लाज्म को, जर्म प्लाज्म क्या है, एंटायर जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम चेक करते हैं, स्क्रीन करते हैं। क्यों करना ज़रूरी है, वरना हम जिस प्लांट का क्रॉस कर रहे हैं हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए वेदर द प्लांट विच वी आर कंबाइनिंग इज हैविंग डिजायर्ड फीचर्स और नॉट। Okay, then plants should be healthy, they should be vigorous, they should show desirable characters, but the complementary features एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब एक है मेल, एक है फीमेल प्लांट, इस मेल का इस फीमेल के साथ कॉम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ओके, देन जिन पेरेंट्स को सिलेक्ट किया हमने, हम उनकी सेल्फिंग करवाते हैं 3 से 4 जनरेशंस तक। क्यों करवाते हैं, वी मेक दिस प्लांट सेल्फ फॉर मेंटेनिंग द प्योर लाइन्स, दैट इज होमोजाइगोसिटी। हम ये चाहते हैं जिस जीन में हम इंटरेस्टेड है, जिस फीचर्स में हम इंटरेस्टेड है, बेसिकली वही फीचर्स जनरेशन टू जनरेशन आए। हम नहीं चाहते कि कोई भी अनडिजायर्ड फीचर्स आए, ठीक है। सो वी क्रॉस देम, दैट इज सॉरी वी सेल्फ देम एंड मेंटेन द प्योर लाइन। व्हाट इज सेल्फिंग, उसी के सेम वैरायटीज के साथ उसको क्रॉस करवाओ जिससे इनकी जनरेशन टू जनरेशन प्योर आती जाएगी। हमने वैरायटीज में कोई चेंजेस नहीं किए, सेम पी प्लांट लिया, उसी के पार्टनर के साथ सेम पी प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, ताकि हमने वैरायटीज चेंज नहीं की, जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट फीचर्स आएंगे। ओके, देन प्योर लाइन्स आर सिलेक्टेड, multiplied and they are used in hybridization. Okay, then coming to hybridization, the third step is hybridization. हमने जिन प्लांट्स को सिलेक्ट किया जिनमें मैक्सिमम डिजायर्ड फीचर्स थे, एक प्लांट को हमने सिलेक्ट किया एज अ फीमेल जिसमें मैक्सिमम फीचर्स थे डिजायर्ड जीन, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वी ऑल नो। हियर ऑल्सो वी हैव सिलेक्टेड the plant which has various desired features as a female plant and other as a male plant, okay, which lacks good characters. Okay, then pollens are collected from the male plant and they are dusted onto the stigma of the female plant. हम क्या करते हैं, पोलन लेते हैं, पोलन ग्रेन प्लांट के एंथर्स को ब्रेक करते हैं, पोलन ग्रेन्स लेते हैं, उनको ब्रश से डस्ट करते हैं प्लांट्स के ऊपर। emasculated female plant, what is emasculation? Removal of anthers before anthesis. मतलब I will define, removal of anthers before anthesis। मतलब हम मेल प्लांट के एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं बिफोर एंथीसिस। एंथीसिस मतलब उसकी डेवलपमेंट की कंप्लीट मेच्योरिटी की स्टेज से, ताकि प्लांट में मेल प्लांट रह ना जाए। क्योंकि हमने बोला है पी प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है, अगर हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर बाइसेक्सुअल प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं, सो वी नीड टू इमेस्कुलेट वन विच इज एज अ फीमेल पेरेंट। ओके, और हमने जिसको मेल लिया है उसकी सिर्फ पोलन ग्रेन्स लेने हैं, इसकी सिग्मा पे डस्ट करने हैं। और हमने जब करवाया, दिस इज आर्टिफिशियल क्रॉस, दैट इज पॉलिनेशन। और जैसे ही ये क्रॉस हो गया तो इससे हमें बाद मिलेगा फ्रूट एज वेल एज सीड फॉर्मेशन। हमने 2 पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे जिसकी वजह से हमें अपकमिंग जनरेशन जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक हाइब्रिड, दैट इज जो सीड्स ऑब्टेन होंगे वो हम लोगों को हाइब्रिड मिलेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एंड दिस F1 हाइब्रिड इज नाउ सिलेक्टेड एंड देन इवेल्युएटेड। ये जो F1 हाइब्रिड है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और देन इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट इज टू चेक कि प्रॉपरली आया है या नहीं आया है, कोई हार्मफुल जीन्स तो नहीं आए हैं। ओके, देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। व्हाट इज दिस?
सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, जिन प्लांट्स को हमने बनाया हमारे F1 जनरेशन के, उनको हमने हाइब्रिड बोला एज वेल एज सुपीरियर बोला। सुपीरियर क्यों? क्योंकि जो इनके पेरेंट्स थे उनसे भी अच्छी क्वालिटी का हमको हाइब्रिड मिला है, इसीलिए हमने बोला कि सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर किससे है? अपने पेरेंट्स से है। सुपीरियर है क्योंकि उसके पास दोनों पेरेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ गई हैं। ठीक है, सुपीरियर, हाई विगर, दे आर सिलेक्टेड एंड लेटर ऑन सेल्फ्ड फॉर 4 जनरेशंस, 3 to 4 जनरेशन। हम इनका भी सेल्फिंग क्यों करते हैं? ताकि ये जो प्लांट हम लोग को F1 हाइब्रिड मिला है ये प्योर रहे, इसमें कोई भी न्यू कॉम्बिनेशंस जो खराब हो, वाइल्ड वैरायटीज हो, ये ना आए। ठीक है, तो हमने इनको प्योर लाइन मेंटेन किया और डिजायरेबल कैरेक्टर्स हम लोग को वैसे के वैसे मिले, दैट इज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो गई और जीन्स और कैरेक्टर सेग्रीगेट या सेपरेट नहीं हुए। व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेपरेशन। और सेपरेट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने सेल्फिंग की, जनरेशन टू जनरेशन प्योर लाइन मेंटेन की, जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छी क्वालिटी मिली। अब हम लोग को मिल गई है सीड, है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे, रिलीज करेंगे कमर्शियल नेम में। ठीक है, ऑफ न्यू कल्टिवर्स। न्यू कल्टिवर्स मीन्स जिन्होंने न्यूली इसको कल्टिवेट किया है। तो न्यूली सिलेक्टेड लाइंस जो हैं उनको हमने इवेल्युएट किया। ये न्यूली सिलेक्टेड फीचर्स आए थे, इसको हमने इवेल्युएट किया। किस लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। फीचर्स लाइक पेस्ट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, एज क्वालिटी एज वेल। हमने ये सारे फीचर्स देखे कि इसमें पेस्ट रेजिस्टेंस का जीन है क्या, डिजीज रेजिस्टेंस का जीन है क्या, क्वालिटी कैसी आ रही है, ये सारे फीचर्स देखे, इवेल्युएट किया। इवेल्युएट इज टू चेक, ओके, इवेल्युएट इज टू चेक। हमने चेक किया, आइडेंटिफाई किया और उस बेसिस पे हमने बताया कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे हमने उसको फर्टिलाइजर्स दिए और लेबोरेटरी कंडीशंस में उसको ग्रो किया। ठीक है, सिलेक्टेड क्लाइमेटिक जोन्स हमने दिए नहीं हैं अभी तक। हमने उसको उसकी सिलेक्टेड लाइंस को जनरेशन टू जनरेशन ग्रो किया, फर्टिलाइजर्स दिए, वाटर दिया और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया। जैसे जैसे उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुआ हमने उसको लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो किया, लेबोरेटरी में सक्सेसफुली ग्रो हुआ। धीरे धीरे हमने उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में उगाना शुरू किया और धीरे ही जैसे जैसे ये हम लोग को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में भी पॉजिटिव टेस्ट देने लग गए, अच्छे से ग्रो होने लग गए, क्योंकि इनके पास सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है, तो इसकी वजह से हम लोगों को अच्छा प्लान मिला और धीरे धीरे हमने इसको न्यू वैरायटी को मार्केट वैल्यू में यूज़ किया और कमर्शियलाइज किया। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हम लोगों को काफ़ी सारी इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ राइस एज वेल एज व्हीट मिली। Okay, so we'll stop the class over here today. Thank you.